Hi everyone, welcome back to my channel. Firstly, a lot of you might have already had your interviews, and I hope they went well. I'm sure they went well because you all are amazing in the amount of appreciation and love that you guys have poured in for my help to all of you. Thank you so much, and it's my definitely my pleasure. Now, secondly, for all the ones that have their interviews in the following days, all the very best. You're gonna do well. I have everything set in for you. I have all the questions throughout this video. It's gonna be a very chill video. I'm gonna talk you about my experience during the interview in general and about my friends' experience because a lot of them have had their interviews in session 1 and session 2 as well. And what else? I also have a few general questions that you guys ask कि किस प्लेटफॉर्म पे वीडियो कॉन्फ्रेंस होने वाला है या फिर हाउ लॉन्ग वुड इट लास्ट और व्हेन विल द रिजल्ट्स बी आउट एंड ऑल लॉट ऑफ यू हैव आल्सो आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कोर्स और दिस कोर्स बेस्ड क्वेश्चंस लाइक बीबीए एलएलबी में क्या आएगा या फिर फॉर कोर्स कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजी इंग्लिश एंड जर्नलिज्म उसमें क्या आएगा या फिर साइकोलॉजी इंग्लिश एंड मीडिया में क्या आ सकता है या फिर बीबीए में तो बहुत लोगों ने पूछा हुआ है कि व्हाट कैन कम as well as for BA Honors Economics. So I'm going to cover a lot of questions in this video and I'm just going to frankly interact with you all. And so that's it. And if you have any other doubts or queries related to the interview, then you can definitely comment down below and ask me. I'll post a video or probably reply to your comment as fast as I can so that none of your questions remain unanswered. So starting with this video, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ फ्यू स्पेसिफिक कोर्स क्वेश्चंस. तो अब कोर्स क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन तो यही है कि विच क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू मी ड्यूरिंग माय बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स इंटरव्यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू ब्रेक इट आउट फॉर यू, अ लॉट ऑफ इट आई डू नॉट रिमेंबर, लेकिन काफ़ी जो मुझे याद है उसमें से आई रिमेंबर कि आई वॉज आस्क्ड अबाउट व्हाट इज़ बैंक रेट and what is the repo rate, and if you have economics you'll surely get through it. Then they also asked me ki what kind of subjects I had in economics during 11th and 12th. So I told them that I had Indian economy, statistics, macro and micro. Then they also asked about कि जो न्यूयॉर्क में सिंस देयर इज़ अ लॉकडाउन तो अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स इंडिया में आते हैं सो हाउ वुड इट इम्पैक्ट इंडिया, ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे. So you can mention about foreign exchange rate and everything. और एक और चीज़ what was it that asked me about the monetary policy कि एक सेंट्रल बैंक की मतलब एज एन एक मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. तो वो सब तो ट्वेल्थ में था ही. सो इफ़ यू हैड इकोनॉमिक्स इन क्लास ट्वेल्थ तो पक्का से तुम्हें आता होगा. So they were not very tough. कुछ questions I remember they asked me from statistics, which was never my cup of tea because statistics में इतने सारे formulas है. ऊपर से it was class 11th and class 11th में पढ़ता कौन है. So I really had no idea about statistics के questions, but it went well because उन्होंने एक दो ही पूछे और एक दो ना आंसर करना is fine I guess. Okay, never mind. So this is it for the economics questions. A lot of you have been asking, so this question has been answered. And now another question is what questions were asked for BBA in session 2 video conference interviews. Yeah, so I have a lot of my friends who've applied for BBA, so I'll be telling you their experiences एक एक करके. The first friend I had उसके तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे एंड आई वॉज काफ़ी जेलस कि भाई साहब इसके तो इतने ईजी क्वेश्चन आए हैं. फर्स्टली इट वॉज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वो तो सबका होता ही है. तो आई वुड जस्ट सजेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ पर अपना इंट्रोडक्शन तो आराम से प्रिपेयर कर लो बिकॉज इससे क्या होता है कि दे ऑल्सो हेल्प यू गेट कम्फर्टेबल इन दिस कि मतलब आपको भी कम्फर्टेबल हो जाता है कि जो मुझे पता है मैं वही बोल रहा हूँ. सेकेंडली दे ऑल्सो फील लाइक कि हाँ इस बच्चे को काफ़ी कुछ आता है बिकॉज ये इतना फ्लुएंटली अपना इंट्रोडक्शन दे पा रहा है. सो आई गेस स्टार्टिंग विद इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अच्छे से वुड बी अ वेरी गुड स्टार्टिंग टू योर इंटरव्यू. तो वो तो अच्छे से कर लो. और कमिंग टू सब्जेक्ट्स, उससे ये पूछा गया कि आपके पास सब्जेक्ट्स कौन से थे 11th और 12th में एंड योर फेवरेट सब्जेक्ट. तो उसने बोला कि शी हैड BST एज अ फेवरेट सब्जेक्ट, तो उससे क्वेश्चंस पूछे गए
Also, her micro presentation topic was technology and education, which is quite moderate, मतलब tough भी नहीं है but easy भी नहीं है, I mean according to me. Now coming to friend 2, since she had a commerce background, तो उससे पूछा गया कि ट्रायल बैलेंस क्या है और कैश रिजर्व रेशियो क्या है. शी वॉज ऑल्सो अबाउट वाई डिड यू चूज़ दिस कोर्स, जो कि काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है. एंड हर टॉपिक फॉर माइक्रो प्रेजेंटेशन वॉज डीमोनेटाइजेशन. नो डीमोनेटाइजेशन जीएसटी तो ऐसा टॉपिक है, आई विल रिकमेंड कि वो तो कर ही लो. दे आर गुड इनफ बिकॉज अगर आप मेंशन भी करते हो जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन के बारे में ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, तो प्रॉबेबली दिल फील लाइक दैट योर current affairs are really up to date and that you are following up. So this is good. Now friend 3 ka experience was also very good. She said that the interviewer was very sweet and because she is a chess enthusiast, तो उससे chess के बारे में पूछा because she had mentioned it in की अपने introduction में कि that she is a very good chess player and that she is a chess enthusiast. Also उससे थोड़े current affair पूछे गए जो कि आई डू नॉट रिमेंबर, आई एम सो सॉरी. नाउ गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी गई, तो गवर्नमेंट स्कीम्स आप लोग भी कर सकते हो, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना और MGNREGA वगैरह आप कर सकते हो इफ़ यू हैव इकोनॉमिक्स, मतलब BBA इकोनॉमिक्स वगैरह. अगर आपके पास इकोनॉमिक्स 11th-12th में रहा है तब भी आप कर लो, और अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तब भी आप कर लो. हाँ, सो दीज आर द 2 रीजन्स वाई यू शुड बी नोइंग कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स. नाउ टॉकिंग अबाउट सो उसका ये भी था कि बिजनेस स्टडीज़ में जो उसके क्वेश्चंस थे पूछे गए थे बिकॉज शी हैड मेंशन कि उससे बिजनेस स्टडीज़ पसंद है. ना तो बेस्ट पार्ट इज़ कि एटलीस्ट वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं. सो यू गेट इट गोइंग थोड़ा ईजिली बिकॉज आपका फेवरेट सब्जेक्ट है. नाउ कमिंग टू वाई क्राइस्ट, तो ये तो सबका जनरल क्वेश्चन होता ही है मोस्टली. एंड करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया, दिस इज़ डिफरेंट. तो उससे पूछा गया कि जो अभी करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया चल रही है आप उसके ऊपर अपना व्यू पॉइंट दो. तो शी टोल्ड मी कि शी हैड मेंशन्ड अबाउट इकोनॉमी, बट नॉट ओनली इकोनॉमी बट हाउ डॉक्टर्स हैव बीन हेल्पिंग एंड एवरीथिंग. तो ये सब आप लोग भी मेंशन कर सकते हो. नाउ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फॉर साइकोलॉजी, इंग्लिश एंड मीडिया. तो मेरी फ्रेंड जो इस कॉम्बिनेशन के लिए अप्लाई कर रही थी, सो दिस कॉम्बिनेशन इज़ offered by Christ University, which is psychology, English and media, and the other one is psychology, English and journalism. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के मतलब एज इन कंबाइन करके मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ आपको. फर्स्टली वो आपसे मीडिया के बारे में पूछ सकते हैं कि बेसिकली व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ मीडिया एंड लाइक डिफाइन मीडिया. देन ऑल्सो क्वेश्चंस लाइक जर्नलिज्म कि व्हाट यू फील लाइक इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ जर्नलिस्ट. और 2-3 क्वेश्चंस आपके जर्नलिस्ट के बारे में पूछ सकते हैं कि जर्नलिस्ट कौन है, इनके बारे में नाम बताओ, और व्हाट हैज़ बीन देयर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड, जर्नलिज्म की फील्ड. ऑल्सो दे कैन आस्क अबाउट फेमिनिज्म, आई मीन योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन फेमिनिज्म, बिकॉज बीइंग अ जर्नलिस्ट यू हैव टू हैव ओपिनियंस, यू हैव टू हैव योर ओन पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स दिस सिचुएशन. तो ये भी है. न्यूरो ट्रांसमीटर्स, बिकॉज शी हैड साइकोलॉजी इन 11th and 12th, तो उसको पूछा कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं ये बताओ. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में भी पूछा कुछ. और हर माइक्रो प्रेजेंटेशन टॉपिक वाज पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी, किसी में भी एक में चूज़ कर लो. सो शी वेंट फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज शी फेल्ट लाइक इट वाज ईजियर. मुझे तो कोई भी ईजी नहीं लग रहा टू बी ऑनेस्ट, बट ओके, पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी दोनों ये अजीब से हैं, बट ओके या शी वेंट फॉर डेमोक्रेसी बिकॉज देन यू कैन हेल्प इट. Now another question that is asked from me is what were the questions asked related to business studies from my friends. I'm assuming कि आप लोग ये मेरे फ्रेंड्स के बारे में पूछ रहे हो कि उनसे क्या पूछा, बिकॉज मेरे से बिजनेस स्टडीज़ के क्वेश्चंस नहीं पूछे. सो उनसे आई डू नॉट रियली रिमेंबर बिकॉज आई डोंट नो, बिकॉज आई हैव नॉट हैड BST in my senior secondary as well. So I do not really remember, I'm very sorry. Now another question which is asked is please kindly help with questions related to BBA. Yeah, so like BBA I've already mentioned. आपके और भी questions हो सकते हैं जैसे कि why do you want to go for management and what do you expect from the course, कि आप क्या expect करते हो कि after the course is done how would you have upped your skills
or how would you have upgraded yourself in different areas of your life that you would be better punctually, या फिर do you expect कि मैं टाइम मैनेजमेंट बेटर कर पाऊँगा, या फिर एक बिजनेस हैंडल बहुत अच्छे से कर पाऊँगा, या फिर मेरी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत बेटर हो जाएंगी. तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं. ऑल्सो हाउ विल यू मैनेज टू हेल्प यू, हाउ विल इट मैनेज टू हेल्प यू इन योर पर्सनल लाइफ. तो ये भी आप कर लो कि कैसे मैनेजमेंट आपको पर्सनल लाइफ में हेल्प करने वाली है. ऑल्सो वाई चूज़ ओनली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी फॉर BBA. तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो सबसे पूछते हैं. एंड इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड देन दे कैन आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड बिजनेस स्टडीज़. ऑल्सो अनदर क्वेश्चन इज़ कि आई बीन प्रिपेयरिंग फॉर अकाउंटेंसी, सो व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड. Now questions related to accountancy can be why choose accountancy. एक तो you have to be very specific about the course that you are choosing, कि आपको पता होना चाहिए कि why are you choosing it. I mean search through net and find answers कि वो पढ़ते क्यों हैं बच्चे if you don't know why are you choosing this course. And if you're planning to pursue a career in the field of accountancy, then what profession are you planning to take. Then also read basic concepts of accountancy once from class 11th and 12th, because मेनली तो वैसे वो 12th से क्वेश्चंस पूछते हैं, बट जस्ट इन केस अगर आपके पास टाइम हो तो आप 11th का भी पढ़ लो. आई मीन who would want to go back to their class 12 syllabus. I sincerely understand you. Nobody wants to go through it. तो आप लोग या फिर तो नोट्स पढ़ लो अगर आपने 12th में बनाए हो, नहीं तो ऑनलाइन नोट्स मिल जाते हैं उससे पढ़ लो, नहीं तो वीडियोस देख लो इंटरनेट पे रिगार्डिंग क्लास 12th की सिलेबस, जो भी आपका कोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं आपके 12th के. आई थिंक यही है, बिकॉज आई ऑल्सो फील लाइक कि मैं अपनी 12th की बुक्स वापस नहीं खोल पाऊँगी, बिकॉज काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग रहता है 12th पास करना. बट येस यही है, आपको करना तो पड़ेगा ही. तो आप बस नोट्स पढ़ लो, अपने आपने कभी बनाए हो या फिर किसी जगह आपको नोट्स मिले हो तो आप वो रेफ़र कर लो. जस्ट गो थ्रू देम वंस, उनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. आई एम श्योर व्हेन दे आस्क यू द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स. तो दैट्स इट. एंड दे कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस लाइक अगर आपको ABC या XYZ कॉलेजेस ने आपको एडमिशन दे दिया है, सो वुड यू लीव क्राइस्ट फॉर दोज कॉलेजेस XYZ एंड ABC. तो यू हैव टू बी वेरी थरो कि अगर आप छोड़ दोगे कि नहीं छोड़ दोगे. आई मीन इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड इट डिपेंड्स अपॉन कि XYZ और ABC कितना बेटर है. बट आई सजेस्ट कि आप पहले से प्रिपेयर करके रखो कि व्हाट यू गोना स्पीक फॉर दिस क्वेश्चन. एंड फ्यू जनरल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 10 years फ्रॉम नाउ या फिर 5 years फ्रॉम नाउ. पर यू शुड बी श्योर अबाउट कि अगर वो 10 years पूछ रहे हैं तो इट्स अ लॉन्ग टाइम, आप अराउंड 28-27 होंगे. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और अगर 5 years पूछ रहे हैं तो यू विल बी जस्ट आउट ऑफ कॉलेज. सो टेक्निकली देर आस्किंग यू कि आप कॉलेज के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो. सो प्रिपेयर योर क्वेश्चन काफ़ी दिमाग लगा के, बिकॉज देर आर 100 times स्मार्टर देन आस, बिकॉज उन्होंने सेशन 1 के भी बच्चों के इंटरव्यू लिया होगा, थ्रू आउट देयर लाइफ बहुत सारे लिए होंगे. सो दिस इज़ इट. ऑल्सो another question is what questions are asked for BBA LLB. So firstly you should be very thorough with why you chose law और law में आपको क्या interesting लगता है. Then also what subjects had you taken in class 12th, उस related questions भी पूछ सकते हैं. Also you must be acquainted when it comes to BBA LLB ना, I would always suggest that you be acquainted with general awareness थोड़ी. I know general awareness जल्दी से हो नहीं पाएगी. I also remember panicking कि अगर economics के related current affairs पूछे तो shit मेरा क्या होगा and all of that. But and because I was not very keen on current affairs काफ़ी टाइम से, तो मैंने ज़्यादा follow up कर ही नहीं थे current affairs. लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो I would generally suggest कि आप कर लो current affairs एक बार. I mean देख लो कि क्या क्या important हुए हैं. एंड बट इतना टाइम कंस्टेंट रहता है कि वो लोग ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछ नहीं पाएंगे करंट अफेयर्स वाले. इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में इतना टाइम निकल जाएगा. सो डोंट वरी. सो बट BBA LLB के लिए तो दे कैन आस्क, बिकॉज BBA LLB इज़ ऑल अबाउट दैट. सो जनरल अवेयरनेस के लिए आप फ्यू इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं वो आप उनके बारे में कर सकते हो. उनमें किन्हीं में अमेंडमेंट्स आए होंगे, आप वो कर सकते हो. या फिर लाइक यू नो शेड्यूल्स होते हैं डिफरेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में यू हैव लाइक
मतलब डिफरेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है उसके अंदर क्या कंटेंट है वो याद कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल एंड एवरीथिंग। देन चीफ जस्टिस, वो तो आपको पता ही होना चाहिए कि अभी रिसेंट चीफ जस्टिस कौन है, और ऑल्सो द फर्स्ट चीफ जस्टिस। ऐसे ही कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है एंड द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था। ऑल्सो कि आपके व्यू क्या है ऑन रिसेंट चेंजेस इन आर्टिकल 370 एंड अयोध्या डिस्प्यूट, बिकॉज आर्टिकल 370 वगैरह में इट डेफिनेटली डिपेंड्स एज अ BBA LLB पर्सन कि आप क्या पर्सपेक्टिव रखते हो, व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट टूवर्ड्स द होल सिचुएशन और द होल सिनेरियो, तो वो आपको इस चीज़ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो BBA LLP के लिए तो इतना ही है, जस्ट गो थ्रू जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन ऑन इंटरनेट वंस। देन what all questions do we have now? So we're done with BBA LLB, BBA psychology. Yeah. So one of you have also asked ki, so I'll come to general questions now. So general questions are like, firstly we have is ki how to dress up for the interview, and especially girls, because honestly काफ़ी different websites पे and different sites पे ऐसा mentioned है, different dress codes have been mentioned for girls. So let me clear this out for you as of now. तो firstly तो for boys and girls all together, shirt and a blazer would work extremely fine. और अगर शर्ट भी ऐसे फॉर ब्लेज़र नहीं है तब भी बहुत सही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शर्ट इज़ प्रॉबेबली द बेस्ट फॉर्मल अटायर दैट यू कैन हैव, एंड फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ इट वर्क्स। अब द प्रॉब्लम विद गर्ल्स हियर कम्स इज़ कि काफ़ी जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी मेनली सजेस्ट कि गर्ल्स वो पहने कुर्ता एंड पटियाला, बट आई बिलीव कि इंटरव्यू के लिए सिंस अगर आप कुर्ता पहनोगे और उनको गलती से भी ये लग गया कि आपने कैजुअल्स पहने हुए हैं, बिकॉज प्रॉपर पूरा कुर्ता तो दिखेगा नहीं, सो अगर उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये लग गया कि आपने कैजुअल्स पहने हुए हैं, देन इट कैन बी अ ह्यूज प्रॉब्लम और आपका बहुत गंदा इंप्रेशन जा सकता है। आई मीन प्रॉबेबली द वर्स्ट इंप्रेशन, बिकॉज आप एक कैजुअल्स पहन के इंटरव्यू के लिए बैठे हो। बट इफ़ यू वियर शर्ट, आई मीन यू प्ले द सेफ साइड, क्योंकि शर्ट में दर इज़ नो प्रॉब्लम, आप शर्ट पहनो, साथ में ब्लेज़र आपको नहीं पहनना, आप मत पहनो, बिकॉज शर्ट बिल्कुल सही चलेगी। So yeah, this is it for the dress code for the interview. Now talking about how to find your way through Google Meet and about the platform where the interview takes place. तो ये तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा confusing था. So firstly it is Google Meet. It is the platform where the whole interview thing is taking place. Now I suggest आपको मैं एक proper video भी बना दूँगी इस चीज़ पे कि जो लास्ट 10 मिनट्स होते हैं, एज इन 10 मिनट्स बिफोर द इंटरव्यू, हाउ इट हैज़ टू बी, बिकॉज आपको ऑन द स्पॉट काफ़ी चेंजेस करने होंगे। जैसे इफ़ योर इंटरव्यू इज़ ड्यू फॉर, ओके सो लेट मी टेल यू द होल प्रोसेस, लेट मी ब्रेक इट आउट फॉर यू। जिसको अभी लगता है कि उनके इंटरव्यू टाइमिंग्स या डेट नहीं आए हैं, डोंट पैनिक। मैं आपको बता देती हूँ कैसे होने वाला है थ्रू आउट। तो फर्स्टली क्या होने वाला है कि इवन इफ़ योर डेट एंड टाइमिंग्स आर नॉट हियर and have not been mailed to you or message to you, तो जैसे I had my interview on 23rd, तो उससे पहले वाले दिन I got my message and mail, I got a message around 6 PM कि you will have an invite, मतलब मैसेज पे आपके इनवाइट मैसेज आएगा कि आपका इनवाइट जो है फॉर द गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस इज़ गोइंग टू बी अप ऑन योर मेल ऑन योर गूगल मीट बाय 8 AM टुमारो, कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसके 8 बजे से हम आपका इनवाइट मैसेज डाल देंगे कि अगर आपको गूगल मीट पे आना है तो आप एक इनविटेशन है आपके पास टू कम, जिससे कि आप एडमिन जो हमारा वो होंगे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी वाले, उन्हीं के साथ आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो। नाउ सेकेंडली उसके 2 आवर्स या 1 आवर बाद मुझे आया था मैसेज, इट वॉज नॉट अ मैसेज, इट वॉज अ मेल रिगार्डिंग द फैक्ट कि आपकी इंटरव्यू टाइमिंग्स क्या है। सो इन्वाइट वॉज फॉर 8 AM कि 8 AM से आपका इन्वाइट आ जाएगा, बट इंटरव्यू वॉज अराउंड आफ्टरनून में कुछ, इट वॉज अराउंड 2ish। सो दिस इज़ हाउ यू विल बी मेल्ड एंड मैसेज, एंड इट इज़ कम्प्लीटली फाइन अगर आपको शाम तक भी नहीं आ रहा है, बिकॉज थोड़ा लेट ही आता है, एंड यू जस्ट हैव टू बी रेडी कि अभी इंटरव्यू सीजन चल रहा है, सो यू शुड बी थरो विद द क्वेश्चंस ऑलरेडी। अगर 3-4 दिन बाद भी होगा इंटरव्यू तो पहले से प्रिपेयर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो
या दिस इज़ इट कि मैसेज और मेल कैसा आता है. नाउ कमिंग टू द प्लेटफॉर्म. तो एक तो आपको जो मेल आएगी उसमें दिल भी है लिंक. नाउ मेल में जो लिंक होगा आप उस लिंक को दबाओगे, सो यू विल डायरेक्टली गो टू गूगल मीट. नाउ गूगल मीट में आपके पास दो ऑप्शन होंगे टू ज्वाइन अ मीटिंग. आई मीन यू कैन आस्क टू ज्वाइन or you can ask to join, and there's another option as well. So ask to join basically means that if your interview is due for 1 p.m. and they expect you to sit 5 minutes ahead of your interview timing, तो आप 12:55 पे रेडी होके बैठ गए हो, and after 12:55 either the interviewer would send you an invite asking you to join the Google Meet conference, या फिर you will have to send the invite to the Christ University faculty interviewer कि you are ready to take the interview or you are ready to give the interview, so you are asking them to join in the conference. So this is how it goes. Now either you accept कि yes I am ready, और इंटरव्यू तो रेडी है ही इसलिए उसने आपको इन्विटेशन भेजा है तो आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मैं रेडी हूँ और नाउ यू कैन टेक माई इंटरव्यू. नहीं तो अगर आप ही भेज सकते हो 5 मिनट पहले आप रेडी होकर बैठ जाओगे, सो अराउंड 12:58, अगर 1 बजे का इंटरव्यू है सो अराउंड 12:58 और 12:57 यू कैन सेंड एन इन्वाइट सेइंग कि मैं पहले ही बैठ चुकी हूँ एंड नाउ यू कैन ज्वाइन, द इंटरव्यूअर कैन ज्वाइन. सो आई हैव ब्रोक द होल प्रोसेस फॉर यू हियर. अभी यही है गूगल मीट का. वैसे तो बड़े कुछ चेंजेस आते हैं, लेट यू नो अगर प्लेटफॉर्म चेंजेस आते हैं, बिकॉज अर्लियर इट वॉज ऑन टेलव्यू एंड देयर वर लॉट ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस. तो अगर गूगल मीट के थ्रू कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो आई लेट यू नो. नाउ अनदर थिंग इज़ दैट सो वी आर डन विद ड्रेस कोड, वी आर डन विद गूगल मीट, डन विद द प्लेटफॉर्म. नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट हाउ मेनी मिनट्स दिस इंटरव्यू टेक्स और हाउ लॉन्ग डज द इंटरव्यू लास्ट. तो बेसिकली तो वैसे माई फ्रेंड जब उसको इनविटेशन आया टाइमिंग्स का तो उसको बोला कि उसका टाइम 9 से 9:15 है, विच वॉज बेसिकली 15 मिनट्स, और मुझे बोला कि इट इज़ फ्रॉम 2 to 2:20 एंड आई गॉट रियली फ्यूरियस कि क्या बात है भाई. आई कांट, आई मीन वाई इज शी गिवन अ टाइम स्लॉट फॉर 15 मिनट्स एंड वाई हैव आई बीन गिवन अ टाइम फॉर 20 मिनट्स, बिकॉज आई वुड हैव टू स्पीक मोर and the more I have to speak the more I will confuse and obviously there was a lot of panicking, but वैसे it did not last 20 minutes I'm sure, because 2:05 के आसपास ही शुरू हुआ and by 2:20 we were done with the interview. So it is almost 15 minutes and they're very due with the timings because उनको और लोगों का interview भी लेना है and they have a very crunch up schedule. तो अगर 2 बजे का आपका है तो you will be done with like 2:15, मतलब जब शुरू होगा उसके 15 minutes का ही चलेगा. So don't worry and don't panic, and 15 minutes is fine amount of time I guess, not very long and not very less. So this is it for the duration of the interview. Now coming to the last question that we have here is very important question. When will the results be out? So results का तो यार see we have CUET अभी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो आई गेस उसी के बाद आएगा. बट इफ देयर इज एनी चेंज इन द होल एडमिशन प्रोसेस आई एम गोइंग टू कीप यू अपडेटेड, डोंट यू वरी. एंड इफ देयर इज एनी चेंज इन द एडमिशन इंटरव्यू टेकिंग थिंग, और इफ देयर इज एनी चेंज इन द मार्किंग थिंग कि ज़्यादा मार्क्स एंट्रेंस के लग रहे हैं या फिर इंटरव्यू के लग रहे हैं, आई विल डेफिनेटली कीप यू अपडेटेड. एंड so what you have to do is you have to subscribe to my channel and possibly press the bell icon so that you don't miss out on any notifications or any updates from my end. And my duty is to keep you updated and so that we can all go through this together. And all the very best for everyone who had who have their interviews due in the following days. You're going to do very well. I mean honestly through my personal experience, जो interviewer थे वो he was very polite and very kind and he was smiling all the time, so it was good. And if you keep up your confidence and smile, I think you're going to go through it. So all the very best and subscribe to my channel, like this video, share this video with all your friends, your classmates and all the Christ aspirants so that they can also know कि क्या questions पूछे जा सकते हैं and they don't panic. So this is it, and stay tuned. I'm coming up with more videos, and if there's any sort of query or doubt that you have regarding the interview, comment down below. I'll make a video or I'll reply to you as soon as possible so that none of your questions remain unanswered. So stay tuned and
I guess this is it. Yeah. Thank you so much.